انہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا اور اردن سے اس زمین کو چھینا۔ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے اس کو دہشت گردی کہا۔ میں سب سے پہلا آدمی ہوں جب میں نے کہا کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، تاریخ کو پڑھیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے، اور حل اس کا وہی ہے کہ اسرائیل اپنی جگہ کے اوپر رہے اور ان ملکوں کو آزادی کے ساتھ، ان کو فلسطین کو بھی ایک ملک، ان کے حقوق زندگی کے تسلیم کیے جائیں، اور اگر نہیں ہوں گے تو انہوں نے اپنا لوہا منوا دیا ہے، چاہے امریکہ کی کتنی بڑی امداد ہو اور چاہے اسرائیل کتنے ہتھیار لے کر کے بیٹھے، لیکن ان لوگوں نے چنے تو چبوا دیے ہیں کہ یہ بھی آزاد رہیں اور اسرائیل بھی اپنے جگہ پر رہے۔ یہ اسرائیل کی زندگی کے لیے بہترین طریقہ ہے، نہیں تو اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ پارٹیوں نے گیان واپی اور متھرا کا معاملہ اٹھایا ہے، ورشپ بیلٹ کے ہوتے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، لیکن الہ آباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے کو آگے بڑھا رہی ہے، اور آپ کی طرف سے لگاتار آ رہا ہے کہ جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو ہم مانیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی اس سے آگے کوئی کورٹ نہیں، ہم کیا کریں گے بتائیے؟ اچھا اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے مسلمان کیا کرے؟ گیان واپی مسجد اور متھرا کی عیدگاہ کے مسائل کو بھی شروع کر دیا۔ جب یہ کہہ دیا کہ رام جنم بھومی نہیں ہے تو پھر آستہ کیا رہے گی؟ یہ تو آپ عجیب و غریب بات کہہ رہے ہیں۔ جب وہ یہ کہتا ہے سپریم کورٹ کہ یہ مسجد اپنی جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں رام مندر نہیں تھا، جب 91 کا قانون آ چکا تھا تو اب بابری مسجد کے سوا کسی مسجد کے مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے لگاتار کہا جاتا ہے کہ جو بی جے پی ہے وہ آئین پر بھروسہ نہیں رکھتی، ان کا ایجنڈا ہے ہندو راج بنانا۔ ابھی امت شاہ کا ایک بیان سامنے آیا کہ آئین پر ان کو مکمل بھروسہ ہے اور اسی کے سہارے ہم چلیں گے۔ اگر وہ آئین کے اوپر چلتے ہیں تو آئین نے اقلیتوں کو جو حقوق دیے ہیں ان میں ان کو آزادی دینی چاہیے۔ جو مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، یکساں سول کوڈ کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، ان سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ میرے لیے آپ حضرات کی تشریف آوری بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں چند سال پہلے سے یہ معمول رہا ہے کہ آپ حضرات کو میں دعوت دیتا تھا، تشریف لائیں، بڑا اچھا کھانا کھائیں، سب ساتھ بیٹھیں، پیار و محبت کی بات ہو، لیکن کرونا کی وجہ سے یہ سلسلہ بند ہو گیا تھا۔ پھر میں مولوی فضل الرحمان سے کہتا تھا کہ بھئی اس سلسلے کو شروع کرو، کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ کئی سال کے بعد آج ہمیں اس کا موقع ملا ہے، ہم آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں۔ ہم کوئی سیاسی آدمی نہیں ہیں اور ہم سیاست کی بات بھی نہیں کرتے ہیں، اور اب تو ہمارا حال یہ ہے کہ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، 82 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، اب بات چیت کرنا بار بار یہ بھی مشکل ہے۔ میں پہلے آپ حضرات کے ساتھ بیٹھتا تھا اور گھنٹوں بات کرتا رہتا تھا، مختلف چینلوں کے لوگ بار بار پوچھتے رہتے تھے، اب میرے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بات کریں گے اور جو چیزیں مناسب ہوں گی وقت کے اعتبار سے اس کا جواب بھی دے دیں گے، اگرچہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ مقصد تو یہ تھا کہ بیٹھیں اور بیٹھ کر کھائے پئیں، بات چیت کریں، آپسی بات۔ وہ سلسلہ اب بھی قائم ہے اور ہم اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ باقی دنیا کے حالات سے آپ میرے مقابلے میں زیادہ واقف ہوں گے۔ کوئی مسئلہ اپنے ملک ہی کا نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے اندر جس طرح کے حالات ہیں، وہ جس طرح میرے لیے باعث تشویش ہیں وہ آپ کے لیے بھی یقیناً تشویش کا باعث ہوگے، اور ہر آدمی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اپنی جگہ کے اوپر پوچھئے تو اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ ہم بھی دنیا میں آپ کی طرح رہتے ہیں، آپ ہماری طرح رہتے ہیں، وہ حالات ہیں، ان حالات کی فکر ہر ایک کو ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو اوپر والا ٹھیک کر دے تاکہ سب لوگ چاہے وہ کہیں بھی دنیا میں رہتے ہیں پیار و محبت کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ یہی میرا کہنا تھا، کوئی اور خاص بات نہیں۔
मुद्दे की बात कर लेते हैं, जैसे ज्ञानव्यापी को लेकर के और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के हाँ। चर्चा हो रही है। राम मंदिर भी अब डेट आ चुकी है 22 तारीख को लेकर के अयोध्या में। हाँ। तो अब ज्ञानव्यापी और काशी विश्वनाथ क्या देखते हैं, क्या आपकी सोच है इसको लेकर के? मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जो सन 91 के अंदर चीज़ हुई थी, उसने ये मसला मुसलमानों ही का है, उसने बड़ी हद तक मुसलमानों को मुतमईन कर दिया था और हम ये समझते थे कि और मुद्दे ख़त्म हो गए, लेकिन फिर क़परस्त ज़हनियत ने उनको ख़त्म होने नहीं दिया और ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह के मसाइल को भी शुरू कर दिया। जो 1-2 दिन पहले हाई कोर्ट का फ़ैसला हुआ है, उसने ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में गोया कि उन्हें ये मजबूर कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं। जो कमेटी लड़ रही है वो कमेटी इसके लिए तैयार है और उसने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बातचीत भी कर ली है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो इस मसले को भी कोर्ट के अंदर ले जाएंगे। अब कोर्ट के मसाइल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हम अभी इस सिलसिले में क्या कह सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं। आपको लगता है कि जो मसला है, ये जो ज्ञानवापी का मसला है, इसमें सियासी पार्टियों की जो चुप्पी दिखाई देती है, उस पर जो दूसरी पार्टियां जिनको आप सेकुलर पार्टियां कहते हैं वो भी खामोश हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हम क्या कह सकते हैं किसी की खामोशी, सियासी पार्टियों की खामोशी ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने कानून बनाया था उन्हें इस मसले के अंदर आगे आना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि जो कानून बना था अब उस कानून के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो खामोश हैं तो यकीनन की ख़राब बात है। हम इसकी कैसे कोर्ट का जो फैसला होता है, जैसे मान लेते सुप्रीम कोर्ट का फैसला था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के, उसी तरीके से ज्ञानव्यापी को लेकर के आप कह रहे हैं आगे लड़ाई भी होगी, कोर्ट में लड़ाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देती है तो क्या जमीयत उलमा जो है उसको एग्री करता है? देखिए, मुल्क हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारी है, हमने मुल्क के दस्तूर को बनाया है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करता है, हमारा मुल्क का जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो फैसला करता है, तो हम उसके ख़िलाफ़ नहीं करेंगे। हम कहेंगे, आज भी हम कहते हैं और हम कहते चले आए हैं कि हम अपने मसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा कर के रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है हम उस फैसले के ऊपर खामोश हो जाएंगे। हम खामोश हो गए। ये लोग ये कहना है कि मतलब बाबरी मस्जिद पर हमारी खामोशी देख ली गई, हमने फैसले को सराखों पर रखा, लेकिन उसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए, पहली चीज। दूसरा, उसमें ये कहा गया कि जिस तरीके से ये चीजें हुई आस्था के नाम पर, आस्था अगर दूसरों की भी है तो हमारी भी आस्था है। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि आस्था के नाम के ऊपर हुई है। ये कहा जाता है कि आस्था की बुनियाद के ऊपर, आस्था की बुनियाद के ऊपर नहीं हुई है। आस्था तो क्या, वो तो जब ये कह दिया कि राम जन्मभूमि नहीं है तो फिर आस्था क्या रही? ये तो आप अजीब व गरीब बात कह रहे हैं। जब वो ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि ये मस्जिद अपनी जगह बनी हुई है, यहाँ राम मंदिर नहीं था, तो मसला ख़त्म हो गया कि ये आस्था का कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने क्यों किया है, मैं अब इस बात को उखाड़ दूँ और ये कहूँ कि क्यों किया है, ये कोई बात नहीं है, नामुनासिब बात है। लेकिन मैं इसको आस्था की बुनियाद पर नहीं समझता हूँ। आस्था की बुनियाद पर तो जब होता है जब वो ये कहते कि ये मस्जिद राम जन्मभूमि की जगह है, मंदिर था, उसको तोड़ करके बनाया गया। उन्होंने तो ये नहीं कहा, उन्होंने तो कह दिया कि ये मस्जिद अपनी जगह पर बनी, तो यहाँ कोई राम मंदिर था ही नहीं, न ये स्थान है राम का। आए शाही ईदगाह मथुरा का सर्वे का ऑर्डर आया है, सर्वे रिपोर्ट सबमिट की है, जो तमाम केसेस चल रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि अब ये तमाम दोनों जगह आपके पास से जाने वाली है? नहीं, मैं ये कैसे कह दूँगा मेरे पास से जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट है, ये मसाइल चल रहे हैं। क्या होता है कल को उसको मैं नहीं कह सकता हूँ, वो आगे हालात बताएंगे कि क्या होता है।
मैं ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि जब 91 का कानून आ चुका था तो अब बाबरी मस्जिद के सिवा किसी मस्जिद के मसले को उठाना नहीं चाहिए था। मेरा मानना ऐसा है। जमीयत उलमा इस चीज़ को इसी तरह देखती है, उठाया जा रहा है। ये फ़िरक़ापरस्त ताकतें हैं मुल्क के अंदर जो कभी इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और क़ुर्बत को पैदा नहीं होने देंगी, बाकी नहीं रहने देंगी। ये मसला है, ये अच्छी बात नहीं। जो भी तनाज़े वाले जगह है, जहाँ विवाद है, उन सभी जगहों को मुसलमानों को, हिंदुओं को दे देना चाहिए। नहीं, हम कैसे दे देंगे? कौन अपने पवित्र स्थान को जहाँ वो नमाज़ें पढ़ते हैं और वो एक ज़माने से है, हम कैसे उसको दे सकते हैं? जबकि हमारा मानना ये है कि ये जगहें हमारी हैं, किसी और की नहीं है। हमारे नज़दीक मस्जिद पवित्र स्थान है, किसी दूसरे के धर्म की ज़मीन पर कब्ज़ा करके हम मस्जिद बना लें, हमारे धर्म के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। हम ये जानते हैं, मानते हैं, हमें यकीन है कि जहाँ मस्जिद है वो जगह मस्जिद ही की है, मस्जिद वहाँ बनाई है। हम वो किसी दूसरे को कैसे दे दें? बाबरी मस्जिद केस में आरएसएस ने यकीन दहानी कराई थी कि इसके बाद सब कुछ पुराना हो जाएगा, कोई तनाज़ा पैदा नहीं किया जाएगा। आपको लगता है कि इसके पीछे आरएसएस? मैं नहीं जानता हूँ कि आरएसएस से, मुझसे तो कोई बात आरएसएस की हुई नहीं थी। मैं गया था मोहन भागवत जी के पास, मेरे साथ तो ऐसी बात नहीं हुई। आपने सुना होगा कहीं आरएसएस ने ये बात कही, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट की पार्लियामेंट ने ये कानून पास किया कि इसके बाद कुछ नहीं होगा। अब हो रहा है और मुझे हैरत है कि कोर्ट भी ये कह रहा है कि हाँ ठीक है होगा। हाई कोर्ट ये कह रहा है। मेरा मानना ये है कि बहुत सारे मसाइल सरकारों के साथ बातचीत और संवाद से हल होते हैं, लेकिन पिछले 10 साल या 9 सालों में अगर देखा जाए तो मुस्लिम संगठनों ने लगातार मोदी सरकार का बाइकआउट किया। नहीं, ये गलत आप कहते हैं कि बाइकआउट किया है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं गया हूँ मोहन भागवत जी के पास, दूसरे लोग भी गए हैं। मेरी 2.25 घंटे तकरीबन उनसे बातचीत मैं खुद ही उठाया, इसलिए कि जुमे का दिन था और 11 बज रहे थे, मुझे आना था, जुमे की नमाज पढ़नी थी। मैं अगर बैठा रहता बात करते रहता, हो सकता है आध पौन घंटा और बातचीत चलती। ऐसी बात नहीं है। क्यों बाइकआउट करेंगे? किस लिए बाइकआउट करेंगे? लोग जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। जो सियासी लोग हैं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझसे चल करके 10 कदम भी नहीं चला जाता है, लेकिन लोग जाते हैं, मिलते हैं। मंत्री साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टियों ने ज्ञान वापी और मथुरा का मामला उठाया है, वर्षिप डेट के होते हुए नहीं होना चाहिए, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस मामले को आगे बढ़ा रही है और आपकी तरफ से लगातार आ रहा है कि जो कोर्ट का फैसला होगा उसको हम मानेंगे। हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई इससे आगे कोई कोर्ट नहीं, हम क्या करेंगे बताइए? अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, मुसलमान क्या करे? आप बताइए। रास्ता यही है। हमें कानून ने जहाँ तक जाने का रास्ता दिया है वहाँ तक जाएंगे। हमें यकीन है कि हर मस्जिद की जगह पर है। किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद इस्लाम में नहीं बनाई जा सकती। हम इसको हज़ारों दफ़े कह चुके हैं। लेकिन हमारे मुल्क का अगर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट आखिरी चीज़ है, वो कोई फैसला करती है, क्या किया जाएगा? हम नहीं कर सकते हैं। मौलाना, सर्वे को लेकर दलील ये है कि हम पता लगाना चाहते हैं कि आखिर है क्या, धार्मिक स्थान मंदिर है, मस्जिद है, क्या है, और इसी बुनियाद पर सर्वे हो रहे हैं। क्या आप मानते हैं ठीक है? सर्वे कराने में कोई हर्ज नहीं है, सर्वे करा लीजिए आप। हमें यकीन है कि सर्वे की रिपोर्ट अगर सही माना में आ रही है तो यही होगी कि ये मस्जिद है। किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम में जाते हैं, वो सैफी समाज में भी गए, वो क्रिश्चियंस के उसमें भी गए, गिरजाघरों में भी गए। आप ही देवबंद का निमंत्रण देंगे उनको? मैं क्या कहूँ उनसे, यानी क्या होना चाहिए? आप वो कह रहे हैं दारुल देवबंद बुलाइए उनको। बुलाएं। 9-10 साल पूरे होने जा नहीं, हम दारुल की ये तारीख रही है कि उसने किसी को कभी बुलाया नहीं। जो आए उनके सामने जो कर सकते थे वो किया, लेकिन दारुल ने किसी को बुलाया हो? इंदिरा जी गई, बहुत अच्छी बात है। दूसरे लोग गए, राजेंद्र प्रसाद गए, मैं जानता हूँ, और अफ़गानिस्तान के ज़ाहिर शाह आए,
ہم کسی کو بلاتے نہیں، نہ مسلمان کو نہ ہندو کو، آتے ہیں جو لوگ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ مدنی صاحب یہ سرکار پر لگاتار آروپ لگتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں الپ سنکھیک ورودھی، اور ایسے تمام اداہرن دیے جاتے ہیں کہ ایسے تتووں کو اجازت دی جاتی ہے سڑک پر جو کہ الپ سنکھیکوں کو ڈراتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 2014 سے پہلے کی سرکاریں مسلمانوں کے لیے، الپ سنکھیکوں کے لیے بہتر تھی، یا پھر 14 کے بعد استھتیاں بگڑی ہیں یا بہتر ہوئی ہیں؟ کس طرح سے آپ کرنٹ پولیٹیکل سسپینشن کو دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، مسائل ہیں ہمارے، ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں۔ مسلمان ملک کی آزادی کے بعد پریشانی کا شکار رہا ہے۔ مثال کے طریقے پر فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا، ان فسادات کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مشکلات کے اندر پھنستی رہی، کانگریس چلی گئی، اس کے بعد آئے، اب نئے نئے مسائل مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مثال کے طریقے پر مدرسوں کے مسائل کھڑے ہو گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کا اپنے مذہب کے ساتھ رہنا، جینا، زندگی گزارنا، اس کے اندر مدرسوں کی تعلیم کا بہت بڑا دخل ہے۔ اب یہ مدرسوں ہی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آسام کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے جو کچھ آسام کے اندر ہوا ہے وہ یو پی کے اندر بھی ہو، بہار کے اندر بھی ہو۔ یہ اور اس طرح کے مسائل مسلمانوں کے لیے پریشان کن ہے، پہلے نہیں تھے۔ جو گورنمنٹ آ کر کے حکومت کرتی تھی اس کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا بھی ہوتا تھا جو پارلیمنٹ کے اندر ہوتا تھا، مسلم مسائل کو اٹھاتے۔ آج میں سمجھتا ہوں بدبختی یہ ہے کہ ایک بھی وہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کا ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے مسائل کو پیش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جو ملک کے اندر چل رہے ہیں، وہ کیوں ہیں ایسی صورت، اس کو آپ جانتے ہوں گے، آپ بتائیے، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیوں ہے ایسی۔ حضرت مندر کے عوض میں جو زمین دی گئی تھی مسجد کے لیے، آپ لوگوں کا اس پر کوئی پلان ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارا مسئلہ مسجد بنانے کا نہیں ہے۔ مسجدیں تو روز بنتی رہتی ہیں ملک کے اندر۔ سن 47 کے اندر ملک آزاد ہوا، اگر اس وقت مان لیجئے کہ 1000 مسجدیں تھیں، آج ملک کے اندر 50,000 مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ ہم اپنی کسی مسجد کو دے کر کے جب کہ یہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ وہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، اس کے باوجود ہماری اس زمین کو لے لیا جاتا ہے۔ ہم کسی دوسری یعنی گورنمنٹ کی دی ہوئی زمین کے اوپر مسجد کیوں بنائیں گے؟ ہم تو نہیں بناتے مسجد، ہمیں جہاں ضرورت ہوگی اپنی مسجد خود بنائیں گے، روز بناتے ہیں مسجد ہے۔ نہیں، کمیٹی تو یہی کہے گی کہ ہم اس کے بدلے کے اندر وہ جگہ ہماری مسجد کی آج سے پہلے بھی تھی، آج بھی ہے۔ جب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، پہلے بھی مسجد کی جگہ تھی، آج بھی مسجد کی جگہ ہے، آپ نے اس کو لے لیا، آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اس کے بدلے میں دوسری لے لو۔ ہماری زمین کے بدلے میں آپ ہمیں زمین دیں، ہم تو نہیں لیتے، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں 50 مسجدیں مسلمان ہیں ایسا ملک کے اندر جو 50 عالیشان مسجد جہاں چاہے گا وہاں کھڑی کر دے گا، اور روز بنتی ہیں مسجدیں، ہم کیوں لیں گے گورنمنٹ کی دی ہوئی؟ منی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے ہندو پکش کے دوارا کہ اورنگزیب نے یا الگ الگ مسلم شاشکوں نے مندروں کو توڑ کر مسجد بنانے کی بات کہی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی سچ نہیں، آپ اگر میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ اگر جائیں اور کرناٹک کو دیکھیں، مہاراشٹر کے اندر جائیں، آپ کو بڑے بڑے مندر ملیں گے جس کے اندر شاہان مغلیہ کے زمانے سے ان کی دستاویزات موجود ہیں کہ انہوں نے زمینیں دی ہیں ان کو۔ ایک مندر کی بات ایسی ہے جس کے اندر ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، ایک عورت کے ساتھ جو گجرات کے ایک حصے کی کسی نواب کی عورت تھی جس کے ساتھ انہوں نے کیا، بلکہ وہ عورت نواب کی بھی نہیں تھی، کسی راجہ مہاراجہ کی تھی، جس کے ساتھ معاملہ ہوا اس کو توڑ دیا گیا، ورنہ کہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ کی آپ نے جب
हुआ कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ही मसाइल नहीं है, बैरूनी ममालिक के भी मसाइल हैं। तो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो जंग चल रही है, गजा और इसराइल के बीच, उस पर हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर आपका क्या कहना है? और कल ही वजीर आजम ने जो नेतन्याहू है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनसे बात की है और युद्धबंदी की एक तरीके से पेशकश की है। तो इस पूरे उस पर क्या इस मसले को समझना चाहिए। असल में जिस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है उसी के करीब करीब खिलाफत उस्मानिया जो टर्की की थी उसको तोड़ करके और इसराइल को वहाँ ला करके बसाया गया। बैतुल मुक़द्दस के एक हिस्से के अंदर उनका मुल्क करार दे दिया गया। हालात दुनिया कैसे थे कि दुनिया ने उसको कबूल किया। वहाँ बैठालने के बाद उसने अपनी ज़मीन को बढ़ाना चाहा है। 2 मरतबा, लोग इसको नहीं जानते। उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया और उर्दून से उस ज़मीन को छीना। अगर आपको याद होगा तो वो लड़ाई हुई है, गली और कूचे में लड़ाई हुई है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद इसराइल को यह ख़तरा था कि शाम की गोलान की पहाड़ियों से उसके ऊपर किसी वक्त हमला हो सकता है। गोलान की पहाड़ियों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। फ़लस्तीन का हर आदमी ये समझता है कि मुझको वो इसराइलियों ने ग़ुलाम बना लिया है, हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं जिन्होंने ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जंग की है। उसके नतीजे के अंदर कितने लोग मरे हैं। आपने अगर अपनी तारीख़ पढ़ी होगी, रोशन मुस्तक़बिल या रूह रोशन मुस्तक़बिल किताबें मौजूद हैं, उनके अंदर ये पता चलता है कि मुल्क की, हमारे इस मुल्क की आज़ादी के अंदर 1857 के अंदर सिर्फ दिल्ली के अंदर 33,000 उलमा को कत्ल किया गया है, मुसलमानों को, इस बुनियाद के ऊपर। वो भी अपनी जंग आज़ादी लड़ रहे हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं। इसके अंदर किसी को इख्तिलाफ नहीं करना। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इसको दहशतगर्दी कहा। मैं सबसे पहला आदमी हूँ जब मैंने कहा कि ये दहशतगर्दी नहीं है, तारीख़ को पढ़िए। और मुझे इस बात की खुशी है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उसके बाद नज़रिया बदला मुल्क का। हमारे मुल्क ने वहाँ के लिए इमदाद भी भेजी और ये बात कह रहे हैं कि जंग बंदी होनी चाहिए। हम उसका खैर मकदम करते हैं, हम समझते हैं कि बड़ी अच्छी बात है। हम जो बात कह रहे हैं वो बात तारीख़ के आईने में सही है और जंग बंदी होनी चाहिए। और हल इसका वही है कि इसराइल अपनी जगह के ऊपर रहे और इन मुल्कों को आज़ादी के साथ, इनको फ़लस्तीन को भी एक मुल्क, इनके हुकूक ज़िंदगी के तस्लीम किए जाएँ। और अगर नहीं होंगे तो इन्होंने अपना लोहा मनवा दिया है। चाहे अमेरिका की कितनी बड़ी इमदाद हो और चाहे इसराइल कितने हथियार ले करके बैठे, लेकिन इन लोगों ने चने तो चबवा दिए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अमन अमान को कायम करने के लिए वो तजवीज़ कि ये भी आज़ाद रहें और इसराइल भी अपने जगह पर रहे, ये इसराइल की ज़िंदगी के लिए बेहतरीन तरीक़ा है। नहीं तो इसराइल ख़त्म हो जाएगा। मतलब एक सवाल है कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो असली तशद्दुद का है, अहिंसा का है, दूसरी तरफ यही मोदी हुकूमत जो है वो फ़लस्तीन का नाम लेने पर भी सोशल मीडिया पर नौजवानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमने क्या अब भी यही बात है? पहले तो में भी हमने ये खबर लगाई कि दुआओं पे भी पाबंदी, पुलिस ने अइम्मा को धमकाया गया, सामने मस्जिद में दुआओं में। ये बात मैं नहीं जानता हूँ जो बात आपने, ये बात आप देखिए मुल्क के अंदर फ़िरक़ापरस्त ज़हनियत भी है हर सतह के ऊपर, पुलिस हो, मिनिस्ट्री हो या अफसरान हो, पूरी जगह को। आज से नहीं, एक ज़माने से ये बात जो आप कह रहे हैं ये थी इब्तिदा के अंदर ऐसी, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये बात नहीं है, नज़रिया बदला है। और अगर करते हैं तो जो फ़िरक़ापरस्त ताकतें हैं और ज़हनियत है, मैं और आप और गवर्नमेंट भी उनको कुछ नहीं कर सकती। 100 साल पहले आरएसएस ने एक टारगेट सेट किया, 100 साल हो गया आरएसएस ने एक टारगेट सेट किया और मुस्लिम संगठनों का ये मानना है कि आरएसएस अपने मकसद में कामयाब है। जमीयत उलमा हो, जमीयत अहले हदीस हो, ये 100 साल से ज़्यादा पुराने संगठन हैं, लेकिन लगातार ये जिस मिशन को लीड कर रहे थे वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। नहीं, ये बात नहीं है। जो आरएसएस ने अपना प्रोग्राम बनाया था, यकीनन
RSS आज इस प्रोग्राम के अंदर कामयाब है। हमने जो प्रोग्राम बनाया था वो इतना मजबूत प्रोग्राम था कि मुल्क आज़ाद उसी प्रोग्राम की बुनियाद के ऊपर हुआ है। अगर वो प्रोग्राम हमारा नाकाम रहता हिंदू और मुस्लिम के इत्तेहाद का, तो मुल्क आज़ाद नहीं हो सकता था। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा की जेल से आकर के ये बात कही कि अगर हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद होगा मुल्क की आज़ादी के अंदर, मुल्क आज़ाद होगा। और ये फरमाया था कि अगर सिख जैसी जंगजू कौम भी साथ आ जाएगी तो मुल्क की आज़ादी और करीब आ जाएगी। जमीयत उलमा उसके ऊपर लग गई। हमने हिंदू मुस्लिम उस वक्त कभी ये नहीं कहा कि ये हिंदू है या मुसलमान है, जो हैं सब साथ आए, यहाँ तक कि मुल्क आज़ाद हो गया। मुल्क की आज़ादी के बाद जिनके हाथ में इक़्तिदार की बागडोर आई है, अगर वो मुल्क की आज़ादी से पहले जैसे हमारे कंधे से कंधा लगा करके चलते चलते मुल्क इस जगह न पहुँचता, ये हमारा कसूर नहीं है, कसूर जिनका है। मैं सिर्फ कांग्रेस को नहीं, मैं आज की गवर्नमेंट को भी नहीं कहता हूँ। वो लोग जो फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पर दीवारें खड़ी करते थे, यकीनन ये कोताही है कि वो खड़ी कर रहे थे और हम कहते थे कि पकड़ो इनको, पकड़ो। जिन्हें अगर आज नहीं पकड़ोगे तो या आज हमारा खून पी रहे हैं, कल तुम्हारा भी खून पिएंगे। आज उनके खून को भी पी रहे हैं। उस फ़िरक़ा परस्त ताकत को अगर पकड़ लिया जाता कभी ये नौबत ना आती। एक सवाल है, 2024 का इलेक्शन बिल्कुल करीब है, उसकी तैयारी भी चल रही है, मुस्लिमों का रहनुमा आखिर कौन होगा? देखिए मैंने तो कभी सवाल है कि पार्टियों की मीटिंग्स हो रही है, गठबंधन हो गए हैं, अब उनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। आप ये बताइए कि मुसलमान किसको अपना रहनुमा चुनेगा? बीजेपी को लेकर के तमाम बातें होती हैं, देखिए गठबंधन को लेकर तमाम बातें होती हैं, किसको चुनेगा? मैं चूँकि कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मेरी कोई राय इसके अंदर ऐसी नहीं है, न जमीयत उलमा की राय। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो पार्टियाँ जो फ़िरक़ा परस्ती नहीं रखती हैं और फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत ऐसी नहीं है जो मुल्क को नुकसान पहुँचाए, उन पार्टियों से क़ुर्बत को इख्तियार करना चाहिए, ताकि फ़िरक़ा परस्ती की ये सूरत जो आज बिल्कुल कहते हैं कि छुटा हुआ ऊँट है, जहाँ चाहे वहाँ चला जाए, ये सूरत बाकी न रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है। मौलाना साहब, ये कंफ्यूजन है, फ़िरक़ा परस्त वो पार्टियां कौन है जो कि फ़िरक़ा परस्त नहीं है? फ़िरक़ा परस्त ये तो डिफाइन नहीं हो पा रहा। हाँ, नहीं, फ़िरक़ा परस्ती का मतलब ये है कि वो अपनों की तायीद हर चीज़ के अंदर, गलत चीज़ में भी करें, सही चीज़ के अंदर भी करें, यही फ़िरक़ा परस्ती का मतलब है। बंदी साहब, एआईएमआईएम की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? एआईएमआईएम की राजनीति को लेकर नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, उसका नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदा नहीं होता। मेरी राय कोई राय भी नहीं है, लेकिन मैं सियासी आदमी हूँ। जो मौजूदा हुकूमत है मोदी सरकार, उससे आप क्या तवक्को करते हैं? इस तरह की चीज़ें मुसलमान क्योंकि है तो 14-15% मुसलमान, मैं नहीं जानता। मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन ये बात हो नहीं पा रही है अभी तक। मुसलमानों को साथ लेकर चलना चाहिए। और मैं एक बात बड़ी खुली कहता हूँ, ये बात, और हर आदमी उसको देखता है कि इतनी बड़ी पार्टी जो मुल्क के अंदर हुकूमत कर रही है, ये समझिए कि कोई पूरा पार्लियामेंट उनके हाथ के अंदर है, लेकिन उसमें मुसलमान कई हैं, इसको आप देखिए। और अगर नहीं हैं तो अपनी सियासत की इस रुख को मैं समझता हूँ बदलना चाहिए। मुसलमानों की तरफ से लगातार कहा जाता है कि जो बीजेपी है वो आइन पर भरोसा नहीं रखती, उनका एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाना। अभी अमित शाह का एक बयान सामने आया कि आइन पर उनको मुकम्मल भरोसा है और इसी के सहारे हम चलेंगे। अगर वो आइन के ऊपर चलते हैं तो आइन ने अक़लियतों को जो हुकूक दिए हैं उनमें उनको आज़ादी देनी चाहिए। जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, यकसा सिविल कोड का मसला है, तलाक़ का मसला है, इनसे पीछे हट जाना चाहिए। और अगर नहीं हटते हैं तो इसका मतलब ये है कि दस्तूर के उन दफ़ात को जो अक़लियतों के लिए दिए गए, जिनमें उन्हें मजहबी मुकम्मल आज़ादी है, इसका मतलब ये है कि आज़ादी नहीं है। ये बताइए हाँ, सिविल कोड पर आप लोग कमेटी से मिले थे,
हाँ। क्या बातचीत हुई आप लोगों की कमेटी में, क्या कुछ आप लोगों को एश्योरेंस मिला है? नहीं, मैं जब मिला था उस वक्त एक्शन सिविल कोड का मसला नहीं था, मैं तो पहले किया, मैं तो नहीं मैं नहीं गया था, मैं नहीं। सर यहाँ पे जो 3 नए क्रिमिनल कानून जो लाए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो केसेस दर्ज किए जाते हैं भारत में वो मुसलमान, दलितों और पिछड़ों पर दर्ज किए जाते हैं। 20% ऐसे मुसलमान हैं देश में जो इस वक्त अंडर ट्रायल है, उन्हें बेल नहीं मिलती है। चाहे किसी भी राज्य की बात करें, सबसे ज्यादा वहाँ पर मुसलमानों पर डिटेंशन लगे हुए हैं, डेथ रो के केसेस लगे हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इन 3 कानूनों ने और मुश्किलें पैदा कर दी हैं क्योंकि बेल नहीं मिलेगी। इस पर आपकी क्या? नहीं, यकीनन ख़राब बात है, बेल का न मिलना ये ख़राब बात है। हम केस लड़ते हैं मुसलमानों के। इस हुकूमत से पहले हम जिन लोगों के केस लड़ते हैं वो तकरीबन 700 आदमी हैं। उनको हर महीने 2 महीने के अंदर 2-4 आदमी निकल कर बाहर आ जाते थे। कुछ उसमें ऐसे होते थे जो बाइज्जत बरी हो जाते थे, मुकदमात ख़त्म हो जाते थे, कुछ को ज़मानत मिल जाती थी। और मेरी ये बात चल रही थी कांग्रेस से कि आप ऐसे रुख को इख्तियार कीजिए जिससे इनको दुश्वारी न हो और इनको ज़मानत मिल जाए। मेरी राहुल से भी बात हुई, या तो आप एक कमेटी बना दीजिए जिसमें हर तबके के लोग हों, हर मज़हब के लोग हों। ये जो केस डाले जाते हैं लोगों के ऊपर, पहले उनकी फाइल इनके पास आ जाए। अगर ये समझें कि पुलिस की तरफ से ये केस दिए हुए सही हैं, आप हमारी तरफ से उनको चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दीजिए, लेकिन अगर नहीं तो उनको ज़मानत दीजिए। ये बात हमने उनसे चलाई और उन्होंने एक जो डिप्टी होम मिनिस्टर थे उनको मेरे साथ कर दिया, जितेंद्र शायद नाम दूँगा, राजस्थान के थे। मेरी उनसे बातचीत हुई, 2-3 मीटिंगें हुई और हम चले, किनारे तक पहुँच गए। लेकिन मुल्क में फ़िरक़ापरस्त ज़हनियत इतनी मजबूत है कि कांग्रेस का दौर था और उन ताकतों ने उनको हटा करके बाहर कर दिया, वो ख़त्म हो गए, हमारी बातचीत ख़त्म हो गई। मंत्री साहब, एक सवाल है आपसे, ईवीएम को लेकर के तमाम सवालात हैं। कल इंडिया की मीटिंग हुई, उसमें भी ईवीएम को लेकर के एक मेमोरेंडम पास हुआ। बता रहे हैं कि आपने भी एक खत लिखा है ईवीएम को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, कैसा सही है? हाँ, मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये बात, मैं ये बात तो उनसे कहने की कोई बात नहीं, मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये बात।